को टालता है, शुक्र हमारी नेमतों को बढ़ाता है। मैं आज इस प्रोग्राम की ओनर गुलाम कादिर साहब XZU और इस my teachers. Firstly, I want to say thank you so much for giving me this opportunity to be here today. As I stand here today reflecting on the first 10 years of my journey in this school, first and foremost, I want to express my deepest gratitude to our principal sir. Throughout my time here, I have been continually inspired by your passion for education and for your genuine care for each and every member of this school. I remember that day when the books and left our school after giving too many years to our school. You in one day provided us another best teacher. You never compromised with our studies. I am eternally grateful for this impact you have had on my life. Thanks for your incredible support to us. Now I have few words for our teachers. Our mathematics teacher, Dr. Qasim sir. Throughout my time in school, mathematics has often regarded as a challenging subject for many of us. However, under your guidance and in transformed into an exciting subject, your passion for mathematics is unbelievable. I always cherish the moments spent in your classroom grappling with equations and unveiling the mysteries of geometry and incredible calculations. You have not only been a teacher for me, also a mentor and a source of inspiration for all of us. Our botany teacher, Dr. Muzaffar sir. As we stand here on a new chapter in our lives, I am filled with gratitude for your profound impact you have had on my journey as a student of botany. In your classroom, I have experienced the magic of discovering the beauty and complexity of plant life. Thank you for always inspiring us, motivating us, and giving us foreign support and giving us the reason to cherish the beauty of plant kingdom. Our zoology teacher, Zahoor sir. Throughout my time as your student, I have been inspired by your unwavering passion for the study of animals and nature. Thank you so much. Our chemistry teachers, Tanveer sir and Sajid sir. I always feel lucky to be blessed with such two teachers. They always teach us the deeper exploration of complex scientific discovery and give us the reason to inspire with the beauty of chemistry. Our physics teachers, Fiaz sir and Ibrar sir, again are two marvelous teachers that inspired me to see the world through the lens of physics, to marvel the beauty of mathematical equation and to appreciate the elegance of law that govern our universe. Thank you very much. Our English teacher, Riyaz sir, another gem of our school that teaches the beauty of language. Respected audience. Mr. President, highly your teachers and respected audience, first of all, I express my heartfelt gratitude for the kind of sympathy and affection given by all of you during the past 2 years. In fact, your utmost love and sympathy attitude has impressed me to the core of heart. I have no words to express my heartfelt gratitude in your honor. You have a missionary attitude to educate the ensuing generation. Gone are the days when every student was accumulated, but today you love to work the midnight hour. In this regard, a proper order is inevitable. MI Kittur, my school is undoubtedly a premier educational institution and is serving the young generation for the past 3 decades. आगे के अंजाम से इलाही एक इल्तिजा है, इलाही एक इल्तिजा है, अगर तू करम करे वो बात दे जुबान पे जो दिल को असर करे। काबिल कदर जनाब प्रिंसिपल साहिब, असातिज़ा किराम, तमाम मेहमान खुसूसी और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं 9वीं जमात से अलिस्बा
हिजाब के मायने पर्दा करने के हैं। हिजाब से मुराद ये है कि औरत मुकम्मल तरीके से अपने जिस्म को ढांपे और गैर महरम के सामने बेपर्दा होके ना जाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, लेकिन कहा तो ये जाता है कि हया तो नजरों में होनी चाहिए, तो फिर हमको उनसे ये सवाल करना चाहिए कि फिर कुरान में अल्लाह ताला ने नबी और मुसलमानों को मुखातिब करके उनकी औरतों से पर्दा करवाने का हुक्म क्यों दिया? अहबाब इकराम, जरूरत तो इस बात की है कि ये समझा जाए कि इस्लाम कोई कैद नहीं है, बल्कि ये इंसानी जिंदगी को आसान बनाने का तरीका है। हिजाब करना तकिया होने के मुतरादिफ नहीं, क्योंकि कपड़े तो इंसान ने उस वक्त पहनने शुरू किए थे जब उसने तरक्की की। और हिजाब पहनने से जो लड़कियां कतराती हैं, जो कहती हैं कि हमें हिजाब की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरी प्यारी बहनों, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि अगर आपको हिजाब की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो फिर आप आखिरत में दोज़ख की गर्मी कैसे बर्दाश्त करेंगी? वो गर्मी, ये गर्मी, कौन सी ज्यादा गर्मी होगी? कैसे बर्दाश्त करेंगी आप? जुस्तजू है गुनाहों की, जुस्तजू है गुनाहों की, वो सवाब से डरती है। अफसोस, आज बिन्ते हवा हिजाब से डरती है। मेरी प्यारी बहनों, हिजाब करने वाली लड़कियां किसी सल्तनत की नहीं, बल्कि इस्लाम की शहजादियां कहलाती हैं। इससे बड़ी बात और क्या होनी चाहिए? वफा की पैकर ए बिन्ते हवा, वफा की पैकर ए बिन्ते हवा, हया की चादर नसर से अपने कभी सरकने देना। वफा की पैकर ए बिन्ते हवा, हया की चादर नसर से कभी अपने सरकने देना। कठिन जितनी भी हो मुसाफिरी, अपने आप को ना कभी भटकने देना। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमान ख्वातीन को हिजाब करने की तौफीक अता फरमाए। Honorable Principal Sir, Chief Guest, staff members, and my UC absent. First of all, Assalamu alaikum to all of you, and a warm welcome to this auspicious occasion. As you all know, we gathered here to celebrate and make this farewell the most memorable one our school has ever seen. I would like to congratulate all the seniors for your nice journey in this school. We stand all for a bright future very soon. Someone has rightly said that two hardest things to say: one, hello for the first time, and goodbye for the last time. It is a quite sad moment for all the juniors that are getting separated from their seniors. It is very difficult to say goodbye to them, but we have to say goodbye because it's our responsibility to see them happy. How lucky I am to something that makes saying goodbye so hard. Your presence has been that special something, transforming challenges into opportunities and turning appearances into lifelong friendship. Your presence has been a source of inspiration, and the impact you have left on our life is immeasurable. But the journey ahead holds new challenges and opportunities as you venture forward. May you carry the wisdom gained here and continue to achieve great heights. Ralph Emerson once said, "Don't go where the path you may let go, instead where there is no path, and leave the trail." My dear seniors, you have certainly blazed a trail for us to follow. So with a mix of admiration and nostalgia, we say goodbye. May your future be fulfilled with success, happiness, and fulfillment of your aspiration. Farewell. My dear seniors, you will be deeply missed, but your legacy lives on with us. This moment will stay with me forever, and we will always cherish it. It has become really hard now to cope in this environment with your presence. However, we wish best of luck to all of you and hope our
bright in your future and stay healthy. Look back with a smile, go forward with courage. May your wishes for all that is good go with you. Good luck on your new journey. May success always be with you. You have been an important part of the team and will always miss you. Your new life is waiting for you. May you greet it with open arms and an open heart. At last, I thank everyone for attending and sent along for the speech. Thank you very much. School Education Department and posted at High School Sauni, Educational Zone Dungi, and she is editor of Gojri magazine, Roda de Poem. She is double MA holder, MA Political Science and MA Urdu, and she is doctorate in the subject of Political Science. She has been awarded many times. Some of them are awarded by Tribal Affairs Department in Literature in 2022, Ladli Media Award 2022, Charles Industrial Women of Excellence Award 2023. Recently, she attended seminar on tribal languages in World Book Affairs in New Delhi in February 2024. इससे पहले कि मैं इस किताब को प्रेजेंट करूं, अलहाज गुलाम कादर साहब को और इस अदारा के बानी जनाब जाकिर साहब को मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से इसको हौसला दें। अतीउल्लाह अतीउ रसूलह वला तुब्तिलू अमालकुम। मेहमान खुशी तमाम का मसा तमाम अजीज कदर मेहमान बहनों, प्यारे बच्चों बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत रखी है जिसका मतलब है अल्लाह ताला अपने सारी इंसानियत को खासकर ईमान वालों को कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, मेरे नबी की अताअत करो, मेरी अताअत करो और मेरे नबी की अताअत करो। अगर तुम मेरी और मेरे नबी की अताअत नहीं करते, अभी क्या लफ्ज़ है, वला तुब्तिलू अमालकुम, तुम्हारे बाकी जितने भी अमाल हैं वो ज़ाया होंगे, जितने अमाल। इसमें हमें बड़े मकालते लगे हैं, मकालते ये लगे हैं, ये सारी इंसानियत को लगे हैं, आपको मुझे नहीं लगे, सारी इंसानियत को लगे हैं। इंसान जब दुनिया में आता है वो दुनिया में आने नहीं चाहता। जो माहौल उसको माँ के पेट में मिलता है वो माहौल दुनिया में नहीं मिलता उसको, तो वो यहाँ नहीं आना चाहता। पहली जो चीज़ देता है होता है पकड़ता है, क्योंकि वो नाराज़ान होता है, जमान नहीं, इस माहौल को वो पसंद नहीं करता, जिस माहौल को छोड़ना नहीं चाहता, जिस माहौल का लो नहीं ले रहा। इसी तरह से हम इस दुनिया में आए हैं, हम ये चाहते हैं यहीं रहें, हमने इस दुनिया को छोड़ना नहीं है, ये हमारा मुकालता है। यहाँ का नंबर नहीं रहे, बड़े बड़े बने बड़े इंडिया दुनिया वाले लोग शहनशाह जो समझते थे कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, आज वो नहीं, किसी किस्मत वाले का नाम बाकी है और वो नाम भी बाकी नहीं है। तो ये मुखालते जो लगते हैं, इस मुखालते से आपको निकलना है, जिंदगी को और आखिरत को दोनों को चमकाने के लिए जिस सिक्कल की जरूरत है वो है मेहनत।
मेहनत मेहनत मेहनत, लगातार मेहनत। जब तक आप जिंदा हैं मेहनत करेंगे। और किस्मत वाले हैं आप लोग, असद इकराम भी और बच्चे जिनको अल्लाह ताला ने तालीमी निज़ाम के अंदर चुना है। आप देखते हैं, आप रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने रोजगार की तलाश में होटलों से चले जाते हैं, रोजगार की तलाश में गली में घूमते हैं, गत्ते तलाश करने के लिए, चुनने के लिए। इस तरह से बहुत सारे काम करते हैं वो रोटी कमाने के लिए बेचारे। लेकिन आपको अल्लाह ने चुना है तालीम के लिए। आप बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत खुशकिस्मत है आप लोग। इस पर आप लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, फख्र नहीं, शुक्र करना चाहिए आपको भी मुझे कि अल्लाह ने हमें ये लाइन, जो अंबिया की लाइन है, किसकी लाइन है? अंबिया की लाइन है, जिस पर आप गमजन है। आप इस लाइन को छोड़ना नहीं। ये मोबाइल शोबाइल आपके लिए, मेरे लिए ये शोरकार जरूर है, इनको बतवा नजर नहीं बनाना। ये जरूरत हमारी है, ये हम नहीं कर सकते, निकाल नहीं कर सकते, हमारी जरूरत है। लेकिन इसको सामान्य ताइश नहीं बनाना। मेरी बात समझ गए आप लोग? सामान्य ताइश, ऐश अशरफ वो नहीं बनाना। जब वो बनाओगे तो रास्ता भूल जाओ, भटक जाओ। क्योंकि इस वक्त जो फवाइश हैं वो इन्हीं रास्तों से दाखिल होती है, आवारगियां हैं इन्हीं रास्तों से दाखिल होती हैं। इनसे बचने की कोशिश करेंगे, ज़ुर्रियात के मुताबिक उसको इस्तेमाल करना है। तो ये आज का दिन मैं तफसील में ना जाते हुए एक बात इशारा करना चाहता हूँ। आप इस अदारे को, जो बच्चे यहाँ से फारिग हो रहे हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं हम लोग, और ये दुआ करते हैं अल्लाह कामयाब करे, और ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको कौम और मिल्लत के लिए मशगूला बनाए, अपनी ज़िंदगी और आखिरत में उनको कामयाब करे, उस्तादों के लिए बाइस फख्र बने वो, और अदारों के लिए भी बाइस फख्र बने। इस सिलसिले में आप पर, मुझ पर और इन सारे लोगों पर जिम्मेदारी आयद होती है। मैंने एक लफ्ज़ बोला था कि आपको मेहनत मेहनत मेहनत। आप जहाँ भी रहते हैं, बहुत सारे शहर में रहते हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बच्चियाँ घर के अंदर रसोई के अंदर जब जाती हैं तो कभी किसी अच्छी चीज़ को गंदे बर्तन में नहीं डालती, किसी अच्छी चीज़ को गंदे बर्तन में नहीं डालती, बर्तन को साफ करती हैं, उनको बड़े ज़बरदस्त सख्त किस्म के रेतले पेपर से उसको रगड़ती हैं, और ज़बरदस्त रगड़ती हैं इतनी कि उनको चमका देती हैं, उसकी मैल सारी निकाल देती हैं। फिर उसके बाद उसको सुखाती हैं, फिर उसके बाद उसमें दूध डालती हैं, फिर उस दूध को आग पर रखती हैं, गरमाती हैं, और उसका जो उसको ठीक करती हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाती हैं। तो वो उसको उस बर्तन को सिक्कर क्यों करती है? इसलिए कि उसके अंदर का ये सारा समाज चलने वाला है। देखते देखते हम यहाँ पर जुड़े हो रहे हैं। ये वक्त आस्ता आस्ता गुजर जाएगा और आप इस स्टेज पर पहुँच जाएंगे। इस इदारा ने जो रूरल इदारा के नाते से काम किया है, इसकी तमाम जो बुनियाद है वो मेहनत पे है और वो लगन पे है। एक छोटे से स्कूल के तौर पर शुरू किया था रेंटेड अकोमोडेशन में, और एक इसके पीछे एक आदमी का एक अपना नजरिया है, जिन्होंने अपनी तमाम ताकतों को लोगों के बच्चों के लिए वक्त किया था। उनकी ईमानदारी, उनकी दयानतदारी, इन बच्चों को अपना बच्चे समझना, जिसका नतीजा ये हुआ कि जाकिर साहब को अल्लाह ने धोखा दिया। और आपने फरमाया कि सुबह यहाँ फजर में आते और मगरिब में जाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। इस की जो रौनक है, इस पर जो रंग चढ़ा है, ये इनकी जवानी का रंग है। इसने अपनी जान को भी यहाँ पर लगा दिया, और इस छोटी सी उम्र में भी अभी ये शुगर का जो सिलसिला चला है हर जगह में, हर घर में, इनको अभी शुगर आ गई। बहुत ही छोटे हैं इनसे, और इन्होंने अपनी ताकत यहाँ पर लगा के इसका ये रंग चढ़ाया है। रूरल इलाका के अंदर
जब प्राइवेट स्कूल का एक दौर चला तो रूरल इलाका के बच्चों के लिए कोई खातिर का बंदोबस्त नहीं थी। इन्होंने बहुत कम फीस स्ट्रक्चर पे यहाँ के बच्चों को, यहाँ के आवाम को तालीम दी, और ये इनके वालिद मोहतरम की मेहनत है। उनको वो अपना दौर याद रहा कि किन हालात के अंदर उन्होंने अपनी तालीम हासिल की थी और किन हालात के अंदर ZDO के मकाम पर पहुंचे। उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो मेहनत की उसका ये नतीजा है। प्यारे दोस्तों और साथियों, ज़्यादा लंबी बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं इनकी कामयाबी, इनकी मेहनत, इनकी लगन जो इस इलाका के अंदर इन्होंने प्रोवाइड की है, मैं इनकी तारीफ करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ और पूरी मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूँ, उनके साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। अब जितने लोग यहाँ पे आए, अफ्ताब साहब है, असगर जी हैं, बाकी साथी जो यहाँ पर जिन्होंने अपने यहाँ पर टाइम दिया है, अब एजुकेशनिस्ट लोग आज उस एजुकेशन की वो एजुकेशन में तखीस हो गई है। उस एजुकेशन की आप जरूरत नहीं जिससे बेरोजगार लोग पैदा हो। उस एजुकेशन की आप जरूरत नहीं रही। यहाँ का पढ़ा लिखा आदमी जो रोजगार के लिए बेसरो समाने की हालत में घूमे, अब एजुकेशन जो है टेक्निकल एजुकेशन और वो एजुकेशन की जिससे आम आदमी मुस्तफीद हो, उसकी जरूरत आ चुकी है। नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो चुकी है सरकार की, उससे आप बाहर नहीं जा सकते हैं। पर बहरहाल आपने जो किया है और आपने जितनी मेहनत यहाँ पर दिखाई है, मैं समझता हूँ कि रूरल इलाका के अंदर हमारे लिए एक स्कूल या यूनिवर्सिटी का मुकाम रखता है। हमारे रूरल के लोगों को वो जमींदार आदमी, वो किसान जिसकी वोट से पार्लियामेंट की सरकार बनती है, मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उसके बच्चे को जब ये इदारे का जब उसको दाखिले का टाइम आता है तो उसका वो फीस स्ट्रक्चर जो है एक लिस्ट की शक्ल में एक फरिश्ता बन के सामने आता है, वो बेचारा बेबस हो जाता है। बस इस इदारे ने उस शर्मिंदा ताबीर किया। जनाब गुलाम कादर साहब इज awarded for the retired civil education officer in recognition of his lifelong outstanding contribution towards education, peace building and Islamic teaching through practice, and I wish him a very healthy life and very good contribution towards the society. बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा और बाकी मेहमानों से भी कि वो आज के चीफ गेस्ट जनाब एडवोकेट कमर हुसैन चौधरी फॉर्मर MLA उनको टोकन ऑफ लॉ पेश करेंगे। भाई तालियां नहीं बजती है, क्या बात है, तालियां जोर से बजाओ। अब अगला टोकन ऑफ लॉ इज फॉर और गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब नूर अहमद चौहान साहब, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल, सॉरी फराज जाकिर साहब, द पैटर्न ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। अगला जो प्राइज है वो जाकिर साहब के लिए है। He is founder patron of Muslim Institute of Education, Fatehpur, and he is the person who uplifted society through reform in education. जोरदार तालियां। उसके बाद जिन्हें आज इस स्टेज से आवाज से नवाजा जाएगा, and she is an best example of Nari Shakti, and we are going to present this award to Miss Shaheen Akhtar, who is the force behind this all achievements. अब जो अगला अवार्ड प्रेजेंट करने जा रहे हैं हम, that is guest of honor for today's function, नूर अहमद साहब। मैंने पहले ही कहा था कि वो भी इस कारवान के सिपाही हैं।
अगला सब ना कि और कोई भी रंजिशें, सिर्फ आदतों में तजाद था, उसे शौकियाँ पसंद थी, मुझे सादगी में जनाब अल्ताफ से। He is also one of the outgoing student. असगर साहब अपने आप में एक नाम है, एक अथॉरिटी है, बहुत ज़हीन और काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं। और एक और अवार्ड जो लास्ट थैंक यू एवरीबॉडी। कि आप ज़रूर इंशाअल्लाह इस अदारे के अंदर अपनी मेहनत करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये मीडिया पर्सन यहाँ बैठे हैं, इनका हमेशा मेरे से ये गिला रहा, सर आप स्कूल के अंदर प्रोग्राम नहीं करते। अजीज़ तलबा तलबात, मेरे बच्ची हो, प्रोग्राम मैं मकसद इंसान की ज़िंदगी का होता है। वो बच्चा, वो गरीब का बच्चा, वो बच्चा जिसको घर में दो खाने का आटा जो है मैसर नहीं है, वो आपके सामने आता है। आप सब लोगों ने, जैसे अल्ताफ साहब ने, मशकूर इनका, बड़े दिल से, बड़े सब्र से इन्होंने स्टेज को संभाल के रखा। ये मेरे बाजू हैं, ये सब लोग जो आज यहाँ नहीं मौजूद हो सके, मजबूरी के कारण हमेशा को आज सुबह से मैंने पकड़ के रखा हुआ है। घर में फंक्शन चल रहा है, बहुत मजबूरी थी, तो लास्ट में थोड़ी सी हाथ लगाए, भाई आप लोगों ने मुझे टाइम दिया है। जब तक तो जाकिर को गाड़ी नहीं मिलती थी, आपने जाकिर को अकेला यहाँ नहीं छोड़ा, तो किनों बहुत टाइम लगेगा। किस किस लोगों ने, किस किस मेरे स्टाफ मेंबर्स ने यहाँ मेहनत की, वो जानते हैं, मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। जो लोग बैठे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी मेहनत करें, हम खुशियाँ मनाएं, हर घर में खुशी हो। वो तब होगी जब आपकी डेडिकेशन होगी, जब आपकी मेहनत होगी, जब आप गरीब के बच्चे को देखेंगे जो सुबह बैग उठा के लेके यहाँ आता है, किसका बैग खाली जा रहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मुझे शर्म आ रही है, मेरी टांगें कांप रही हैं। मेरे वालिद मोहतरम अलहाज साहब आपके सामने बैठे हैं, मैं ज़्यादा इनके सामने कुछ नहीं कह सकता, ना मेरी ज़बान इजाज़त देती है। तो लिहाजा अपने माँ बाप का एहतराम करें, अपनी ज़िंदगी का एहतराम करें, आपकी ज़िंदगी कहीं स्पॉइल ना हो जाए। बाकी दोबारा से वो स्टाफ मेंबर जो आज आए, दिल से मशकूर हूँ। जो नहीं आए मसरूफ़ होंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। बाकी अपने काम से मतलब रखें। मेहमान खासकर मेरे स्टाफ मेंबर्स, हाई सेकेंडरी बहुत अच्छा आपने किया, बिलखुसूस फिरोज जी और मुजफ्फर साहब, मेरी लड़ाई हो जाती है बाज़ होगा, बहुत होती है, तो मुझे कहा, कल इन्होंने कसम दी, कम से कम 24 घंटे अपना मुंह बंद रखना, गुस्सा नहीं करना। तो हम सब एक हैं, हमारे हाथ एक है, हमारी उंगलियाँ जो है ना 10, ये मिलेंगे तो हमारा काम होगा, हमारे बच्चे किसी मंजिल पर पहुँचेंगे। आपकी कामयाबी तभी होगी जब आप बैठेंगे, जब आपकी सीटिंग होगी, आपके एग्ज़ाम आ चुका, डेट शीट आ चुका, प्रैक्टिकल आपके हो चुके हैं। और जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं, जो मैंने 2-4 बच्चे आज देखे हैं, वो अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करें। बाकी ज़्यादा